आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? give it to him there. Yeah, please. Yeah. Can I? मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती है, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था। तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। Sir, Sunil Prabhu from NDTV. Just two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose, disclose, disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go over there. Yeah. सर, मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है? ये तो जानकारी। और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Gentleman next to you. Yeah. सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सर, पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं, दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल यह है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजह है? Yeah, the gentleman with the... Yeah, go ahead. Yes. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like, say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million. And Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties? How much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CSC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट है तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 से. So this is the first part of yours. Let me come to Mr. Prabhu. You asked the questions on totalizer. I entirely agree with you that booth wise रिजल्ट मालूम होने से, किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से, इट्स नॉट ए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द कंट्री. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा
लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा। मैं क्या कर दिया? Political system mature itself. The need is to introduce totalizer. We are ready. तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस दौरान जो है पहली 7 चरणों में जो है चुनाव होंगे, जिसमें पहला चरण का जो मतदान है वो 19 अप्रैल को होगा और जो आखिरी चरण है वो 1 जून को होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। तो जल्दी से हम आपको बता देते हैं, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 89 सीटों पर मत डाले जाएंगे। वहीं 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, जिसमें 94 सीटों पर वोटिंग होगी। हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के लिए 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। एक अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं हमारे साथ देहरादून से। अभय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होंगे, जैसा कि हम सोच ही रहे थे, क्योंकि पिछली बार देखने को मिला था 2019 में भी 7 चरणों में चुनाव हुए थे। अब की बार भी 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। उत्तराखंड की बात करी जाए तो 5 की 5 लोकसभा सीट में एक साथ चुनाव होंगे और पहले फेज में चुनाव कराए जाएंगे, यानी 19 अप्रैल को। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी तैयारियां किस तरह से है, क्योंकि जिस तरह से जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, तमाम जो राजनीतिक दल है उनमें भी सुगबुगाहट तेज हो गई होगी। अभय जी बिल्कुल, अगर पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, राज्य की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर पहले चरण में मतदान यहाँ पर होगा, यानी 19 अप्रैल को मतदान होगा। 27 मार्च को नॉमिनेशन की तारीख यहाँ पर होगी और 30 मार्च को जो नाम वापसी की तिथि है वो यहाँ पर रखी गई है। यानी ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है, उसी पहले चरण में उत्तराखंड की 5 सीटों पर होगा और उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तराखंड से लगा हुआ जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ की भी जो उत्तराखंड की सीमा से मिलती हुई जो लोकसभा सीटें हैं, 8 ऐसी लोकसभा सीटें जहाँ पर पहले चरण में मतदान यहाँ पर होना। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य ने अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार मतदाताओं के बीच में जागरूकता अभियान यहाँ पे किए जा रहे थे। जो जिले के जो रिटर्निंग जो ऑफिसर हैं, जो जिलाधिकारी हैं, उनसे लगातार यहाँ पर समन्वय बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, ताकि जिलों में भी तैयारियों को पूर्ण रूप से यहाँ किया जा सके और उनसे लगातार बातचीत हो रही थी। आज जैसे ही ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से जैसे ही तारीखों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया, तो पूरे प्रदेश में जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हरकत में आ गए। यानी तमाम ऐसी चीज़ें जो इस समय चुनाव के दायरे में आती है, जो चुनाव के उल्लंघन में हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को दंड करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। हम जिस सचिवालय में मौजूद है, इस सचिवालय में भी ये कह सकते हैं कि ऐसी जो चीज़ें, चाहे वो तस्वीरें हों या पोस्टर या बैनर ऐसे हों जो चुनाव को प्रभावित करने वाले कहे जा सकते हैं, उन सबको हटाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से ही अपनी कमर कस ली थी और अब जब तारीखों का ऐलान हो गया तो आने वाले समय में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने की जिम्मेदारी अब उनकी होगी और उसके लिए वो रणनीति बना चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि शाम को 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पर वो बताएंगे कि राज्य में किस प्रकार से चुनाव होगा, कहाँ पर कितनी फोर्स लगाई गई है, ठीक है, अब आपके पास वापस आऊंगी। रमन के पास चलेंगे। रमन, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें और दिल्ली तक का जो रास्ता है वो यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में यूपी में क्या तैयारियां? बिल्कुल रिया, सबसे बड़े महासमर को लेकर शंखनाद हो चुका है और देश अब सबसे बड़े चुनाव में जा चुका है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश आबादी के लहजे से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। और जहां देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। ऐसे में चुनाव जो है, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा है कि जो चुनाव की तारीखें और चरण जो तय किए गए हैं वो सामाजिक, धार्मिक और भौगोलिक आधार पर तय किए गए हैं। वहीं अब लोग, जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, उनकी तैयारी जो धीरे धीरे चल रही थी अब तेज हो गई है। उनके ऊपर अब जो चुनाव आयोग का खासा दबाव हो गया है, क्योंकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से चुनाव आयुक्त ने 4M की बात की है, वो जनता से लेकर राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है।
जी बिल्कुल रमन, जिस तरह से आपने कहा कि अब की बार चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज स्पष्ट करी कि पूरी तरह से वो प्रतिबद्ध है कि चुनाव जो हो निष्पक्ष हो। हालांकि विपक्षी दल जो है वो 7 चरणों में आखिर चुनाव क्यों कराया जा रहा है इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। रमन, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक गार्जियन की तरह जनता, चुनाव कराने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिक पार्टियों को तमाम संदेश दिए हैं और उनसे तमाम अपील की हैं। उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया पर उन्होंने खासकर फोकस करते हुए कहा है कि इसी के जरिए हम तक सूचनाएं पहुंचती हैं, लेकिन इसका जो गलत उपयोग होता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिस तरीके से पैसा बांटा जा रहा है, जिस बांटने की खबरें आती हैं, धन बल बाहुबल की खबरें आती हैं, उन पर भी रोक लगाई जाएगी। और आलोचना की उन्होंने बात की है मीडिया से लेकर सोशल मीडिया। उन्होंने कहा है राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा खुद चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना करना भी मीडिया और सोशल मीडिया और जनता का अधिकार है, लेकिन गलत तरीके से साजिश करके एलिगेशन लगाना और अफवाहें उड़ाना, भ्रामक खबरें चलाना, ये बिल्कुल गलत है। जी रमन, साथ ही अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है। ऐसे में जो 7 चरण निर्धारित किए गए हैं, सातों के सातों चरणों में उत्तर प्रदेश के किसी सीट पे जो है मतदान होना है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग जो है कह रहा है कि तैयारियां पूरी है, अगर धरातल पर देखी जाए किस तरह से तैयारियों की बात करें तो जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, उनका कहना 2 साल से तैयारियां चल रही थी और लगभग पूरे देश के और खासकर उत्तर प्रदेश के जितने भी डीएम हैं, जितने भी एसपीज हैं, जितने भी एसपी हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, सबसे बात की गई है। पूरा डेटा तैयार किया गया, जितनी मशीनरीज हैं जो चुनाव संपन्न कराएंगे, जैसे ईवीएम हो गई, लॉजिस्टिक की गाड़ियां हो गई, सबका पूरा डेटा है, सबकी पूरी तैयारी है और पूरा आंकड़ा तय है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश, जो कि आपने कहा बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर चुनाव कराना काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि मैदानी इलाका भी है। जैसा कि हालांकि अभी पूरी सीटों के आंकड़े नहीं सामने आए हैं, लेकिन अगर जैसे कि 7 फेज में चुनाव हो रहे हैं, तो अगर 2019 की तरह बात करें तो पश्चिम से चुनाव शुरू हो सकते हैं, यानी पश्चिम की सीटों पर पहले फेज में चुनाव हो सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए अवध इलाका होते हुए अंतिम चरण जो होगा वो पूर्वांचल की सीटों पर होने का आंकड़ा अभी कुछ ही देर में सामने आ सकता है। ठीक है रमन, बने रहिए, वापस आऊंगी आपके पास। एक बार अभय के पास चलते हैं। अभय, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, इसके साथ ही चुनाव का जो शंखनाद है वो भी बज गया है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनकी तैयारियां किस तरह से, क्योंकि अब एक प्रेशर भी क्रिएट हो गया, क्योंकि एक डेडलाइन आ गई है, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया। अभय, टिपिकल उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि चुनाव की इन तारीखों के ऐलान के साथ ही जो सियासी दलों की जो रणनीति, वो रणनीति भी काफ़ी अंतिम मोड़ पे यहाँ पर पहुँची नजर आ रही है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने अपने 5 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी अपने घोषित कर दिए, चुनाव प्रत्याशी। कांग्रेस की तरफ से अभी 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे दल, आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में उतना बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, अस्तित्व नहीं है, तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बड़ी तैयारी यहाँ पर देखने को अभी तक नहीं मिली है और ना ही प्रत्याशियों को लेकर कोई ऐसी बड़ी तलाश या खोजबीन अभी उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन अभय सवाल ये भी कि आखिर कांग्रेस को इतना समय क्यों लग रहा है, जहां एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो आखिर कांग्रेस को जो 2 सीटें बची है, हरिद्वार और नैनीताल, उसमें इतना अभी कंफ्यूजन क्यों? देखिए, कंफ्यूजन के पीछे की असल वजह कांग्रेस पार्टी की रणनीति या फिर दूसरी चीज़ें नहीं है, बल्कि बड़े जो सीनियर नेता हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिन्होंने पूर्व में चुनाव यहाँ पर लड़ने का काम किया था, उनके द्वारा चुनाव न लड़ने के लिए, जो उनकी तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान यहाँ पर किया गया था, वो सबसे बड़े चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दावेदार के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, लेकिन वो इस समय चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं। अपने बेटे की, अपना जो उनके जो बड़े बेटे हैं वीरेंद्र रावत, उनकी पैरवी वहाँ पर कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है तो वो अच्छे चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे।
नैनीताल सीट पर भी आप ये कह सकते हैं कि पार्टी में जो पूर्व के जो प्रत्याशी थे, जो उनके चुनाव लड़ने की बात थी, वो उनकी तरफ से वहाँ पर मना कर दिया गया था। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऐसी बात वहाँ पर नहीं की गई। इस समय भी ये कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर जो वरिष्ठ नेता हैं आपके रंजीत रावत, उनके नाम की चर्चा यहाँ पर हो रही है। दीपक बलूटिया जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, कई सीनियर पदों पर हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक पार्टी मंथन ही यहाँ पर कर पाई है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है, क्योंकि पार्टी चाहती है कि इन 2 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को और यहाँ पर उतारा जाए जो चुनाव में जीतने की स्थिति में हो, मजबूत जिनका जनाधार हो और सीधे तौर पर जो सत्ताधारी दल भाजपा है उनको सीधी बात यहाँ पर दे सके, यानी उनके साथ सीधी टक्कर यहाँ पर ले सके। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में मंथन चल रहा है, प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हो पाए। इसके अलावा जो दलों की जो सियासी जो रणनीति है वो सीधे तौर पर अब जो राज्य के जो मुद्दे होंगे उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने की होगी। भाजपा अपनी राज्य और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उनको लेकर जनता के बीच में जा रही है। अपनी जो चुनावी रणनीति है, यानी बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक की जो रणनीति है, उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भाजपा करेगी। जबकि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों के चयन के साथ साथ में जो राज्य के ऐसे मुद्दे रहे जिन पर राज्य सरकार विफल रही है, उन मुद्दों को जनता के बीच ले जा रही है ताकि जनता उनके साथ जुड़ सके। तो कह सकते हैं सियासी दलों ने अपनी रणनीति तो बना ली है, लेकिन अब असली जो रण होगा वो अब इन तारीखों के ऐलान के बाद यहाँ प्रदेश में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से विपक्षी दल सत्ताधारी दल को मात दे सकते हैं या उनके साथ जो चुनावी मुकाबला है उसे रोचक बना सकते हैं। जी बिल्कुल अभय, तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम घोषित करने में सबसे आगे चल रही है, वहीं बाकी जो विपक्षी दल है वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। मैं आऊंगी वापस आपके पास, एक बार रमन का रुख करेंगे। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में अपने उम्मीदवारों के नाम जो है सबसे पहले घोषित कर रही है, सबसे ज्यादा उम्मीदवार अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित करे, वहीं जो अन्य विपक्षी दल है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, काफी फूक फूक कर कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इसको अंडर कॉन्फिडेंस बोले? साथ ही रमन, जिस तरह से कांग्रेस की बात करी जाए तो उनके जो 2 गढ़ माने जाते थे, रायबरेली और एक और अमेठी, दोनों ही जगह से कोई भी गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वहां से चुनाव लड़ने को एक तरह से किसी का नाम सामने नहीं आया। राहुल गांधी खुद वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इसको क्या समझा जाए, क्या संदेश? बिल्कुल, आपने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित करने में सबसे आगे है, इसका कारण जो आपने कहा कि जो अगर विपक्षी चाहे अखिलेश यादव हो गए या कांग्रेस हो गई, अभी उन्होंने पत्ते अपने सभी नहीं खोले हैं, तो इसके पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है क्योंकि भाजपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है और उससे तमाम राज्यों में चुनाव लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है वह धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही है, धीरे धीरे लिस्ट जारी कर रही है, कभी 12 कैंडिडेट्स की, कभी 17 कैंडिडेट्स की, कभी 3 कैंडिडेट्स की, कभी 7 कैंडिडेट्स की। अभी कल ही समाजवादी पार्टी ने 6 और प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे एक एक करके प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिन्हें कोटे में अपने 17 सीटें मिली हैं, उन्होंने अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि उनकी अपने गठबंधन दल समाजवादी पार्टी के साथ में अखिलेश यादव के साथ में उनकी समन्वय बैठक भी हो चुकी है। वहीं बात करें यहाँ तक कि जो रायबरेली सीट और जो अमेठी लोकसभा सीट जो गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती थी और अभी भी है, वहां भी अभी कांग्रेस कंफ्यूज है कि वो किसे उतारे। कांग्रेस के खुद बड़े नेता या फिर कांग्रेस के जो क्षेत्रीय नेता हैं, सबका ये बयान होता है कि अभी भी रायबरेली सीट और अमेठी पर गांधी परिवार का ही चेहरा चुनाव लड़ेगा। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस कि जिस तरीके से काम कर रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इस बार गांधी परिवार का कोई वहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, अभी हाल ही में वो राज्यसभा चली गई हैं, ऐसे में सीट खाली है। वहीं अमेठी की बात करें तो पिछली बार राहुल गांधी वहां से हारे थे, स्मृति ईरानी चुनाव जीती थी, उसके बाद में राहुल गांधी वायनाड चले गए थे और इस बार भी अभी पहली लिस्ट कांग्रेस की आई थी उस हिसाब से राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी अमेठी वायनाड दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और अगर चुनाव गांधी परिवार नहीं लड़ता है तो कांग्रेस किस पर विश्वास दिखाएगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री को लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
जी रमन, साथ ही अगर 2019 का लोकसभा चुनाव देखें, कांग्रेस जो सीटें हारी, सिर्फ महज एक सीट बचा पाई थी, रायबरेली। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जितनी भी सीटें वो जीती, उनमें तो प्रचार प्रसार हो ही रहा है, लेकिन विशेष फोकस अब की बार उन सीटों पर भी जो सीटें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जोर शोर से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, कभी कहीं का दौरा, कभी कहीं का दौरा, एक दिन में 3-3 रैलियां। रमन। रिया, बिल्कुल भाजपा जिस तरीके से संगठन का काम करती है, हर दिन भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है कि कहीं ना कहीं चुनाव होता है, किसी राज्य का चुनाव होता है तो किसी राज्य में उच्च सदन एमएलसी या फिर राज्यसभा, लगभग हर महीने भाजपा के चुनाव को लेकर मैदान में उतरती है। साथ ही चुनाव के साथ साथ उसकी बाकी सीटों को लेकर, बाकी चुनाव को लेकर भी बैठ के चलती रहती हैं। भाजपा जो सीटें 2019 में सपा बसपा गठबंधन से हार गई थी, उसको लेकर वो पिछले कई सालों से एक नई रणनीति बना रही है। उसके तहत उसके चाहे आरएसएस की तरफ से है, भाजपा का जो संगठन है, साथ में एबीपी का संगठन है और जितने भी उसके प्रकोष्ठ हैं। रमन, अब की बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। क्या इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? रमन। बिल्कुल, अगर सामाजिक गठजोड़ की बात करें तो 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, वो देश की राजनीति का लगभग सबसे बड़ा गठबंधन था, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना कैडर वोट है एमवाई का, वैसे ही मायावती के पास भी अपना कैडर वोट है, और दोनों वोट मिलाने के बाद में जो गणित बैठता था वो कहीं ना कहीं भाजपा को चैलेंज करने वाला था। लेकिन फिर भी भाजपा ने अपनी अच्छी रणनीति के तहत, अच्छे विजन के तहत उस गठबंधन को भी धराशायी कर दिया था और लगभग इतिहास बना दिया था। वहीं इस बार गठबंधन सपा बसपा का अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है, लेकिन वो चर्चा फेल नजर होती हुई आ रही है। इस बार जो गठबंधन सपा कांग्रेस का हुआ है, वैसे में बसपा अलग अलग अपने प्रत्याशी उतार रही है, और जो जातीय गठबंधन का जो गणित था वो इस बार लग नहीं रहा है, जिससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। और इसी के तहत भाजपा मान रही है कि इस बार जो नतीजा आएगा वो क्लीन स्वीप होगा, 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में जाएंगी। ठीक है रमन, आऊंगी आपके पास वापस, बने रहिएगा। फिलहाल हमारे साथ न्यूज रूम से आदित्य जुड़ चुके हैं। आदित्य, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, साथ में चुनावी शंखनाद भी हो गया है, सवाल यहां पर यही बरकरार कि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो है जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें तो दक्षिण के दौरे पर है, और बीजेपी का जो लक्ष्य है 300 पार, 400 पार एनडीए, ऐसे में जब टारगेट इतना बड़ा है, लक्ष्य इतना बड़ा है, तो क्या ये चीज समझने वाली है कि दक्षिण में जो विशेषकर फोकस करा है वो ठीक है? आदित्य। देखिए, दक्षिण की बात करें तो अभी विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, जहां पर भाजपा को दक्षिण में बहुत ज्यादा जो अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाए थे, तो इसको लेकर जो है पीएम अलग अलग दौरा कर रहे हैं। साथ ही अब चुनाव नज़दीक आया है तो सभी अपने अपने चुनावी एम्बेसडर को लेकर दौरा करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और चुनाव में वोट की अपील करेंगे। और सभी चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी की स्थिति 24 के चुनाव में जो है मजबूत की जाए। हालांकि एनडीए का नारा है कि 400 पार इस बार नारा है एनडीए का, और उसमें जो है वोट के लिए तमाम जो है मशक्कत की जा रही है, लेकिन चुनावी ऐलान हो चुका है, आज ही शंखनाद हो चुका है और तारीखों का ऐलान हो गया है अलग अलग। आपको बता दें कि 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं, तो चरणों की बात करें तो पहला चरण के मतदान जो है वो 19 अप्रैल को होंगे। दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो 26 अप्रैल का दिन है, और 7 मई से फिर तीसरे चरण में 94 सीटों पर उसमें मतदान होने हैं। साथ ही चौथा चरण की बात करें तो 13 मई है, 5वां चरण है तो वो 20 मई है, छठा चरण 25 मई और आखिरी और 7वां चरण 1 जून है। और जो 4 आगे जो इसमें मतगणना होगी तो उसके बाद जो है ये निकल कर आएगा कि इतनी जो चुनावी पार्टियां हैं वो अपनी प्रचार कर रही है, चुनावी रैलियां कर रही हैं। चुनाव के पहले कई तरह की सौगातें दी गई। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर डीए में बढ़ोतरी की गई, वहीं साउथ में भी जो है सीएम रेड्डी की बात करें तो उन्होंने भी सौगातें दी, और चुनाव के पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी 2 रुपए का जो है वो दाम में उसे घटाया गया। तो देखा जाए तो चुनाव के लिए तरह तरह के शंखनाद किए जा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन जनता है, जनता ही आखिरकार मालिक है 2024 के चुनाव में। आदित्य, जनता ही सर्वोपरि है, और यही चीज आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुख्य
चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, हमने 2 साल कड़ी मेहनत करी, अब जिम्मेदारी पूरी, अब जनता की जिम्मेदारी की जाए और मतदान करे। रमन, यहीं पर मैं बता दूं कि हमारे साथ अलग अलग देश के अलग अलग जगह से जो है संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। मथुरा से मोहम्मद फारूक जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अजीत जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से आदित्य जुड़े हैं और साथ ही लखनऊ से रमन जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे मथुरा लिए चलते हैं। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इसके साथ ही चुनावी शंखनाद हो गया है, साथ ही तैयारियों की बात करी जाए, किस तरह की तैयारियां वहां पर? मथुरा में जो है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और पूरे देश में लागू हो गई है और उसी तरीके से जो है जिला प्रशासन पहले से ही तैयारी करे हुआ था, नगर निगम पहले से ही तैयारी करे हुआ था कि जो होर्डिंग हैं, बैनर हैं और तमाम दीवारों पर जो लिखे हुए हैं नारे या उनको जो भी कुछ है उनको मिटाने का काम जेसीबी नगर निगम की तैयार थी, प्रशासन पूरा तैयार था कि उनको हटाने का काम तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। उसी तरीके से नगर निगम ने अपनी जेसीबी लगाकर उनको होर्डिंग और बैनर और जो पोस्टर लगे हुए थे उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है और तमाम जो दीवारों पे लिखा हुआ है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार किया गया है उनको भी मिटाने का काम नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी में है और तमाम जो है जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने अपनी पीसी में कहा है कि ये जिम्मेदारी जो है तमाम मीडिया सहयोगियों की भी बनती है कि मीडिया के लोग भी जो है जनता तक जो है पहुंचाएं और इसका जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश है उसका आम चुनाव है, उस आम चुनाव को यानी घरों घरों तक इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और इसको जो है घर घर तक पहुंचाकर लोगों को बताना चाहिए, यानी मतदान के दिन जो है पूरा जो है एक पर्व मनाया जाना चाहिए। और यह मैं आपको बता दूं कि ब्रज की 2 सीटें हैं, उस पर द्वितीय चरण का चुनाव 26 अप्रैल को है जिसमें मथुरा और अलीगढ़ हैं और ब्रज की 6 सीटों पर तृतीय चरण का जो मतदान होगा वो 7 मई को मतदान होगा जिसमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी और हाथरस, एटा हैं। ये सीटें जो है 7 और 2 ब्रज की द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में ये मतलब मतदान होगा, यानी 7 और 2 6 और 2 8 सीटें जो है ब्रज क्षेत्र की हैं जो मथुरा जिले से सभी लगी हुई है। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस और एटा। जी बिल्कुल मोहम्मद फारूक, एक तरह से देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। बोला गया है कि हर जिले में जो है कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, डीएम उसकी निगरानी करेंगे, साथ ही एक किसी अधिकारी को वहां पर लगाया जाएगा। मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा। रुक करेंगे अजीत का जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, चुनाव का शंखनाद हो गया है, माना जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे उसके साथ ही 4 जो और राज्य है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम शामिल है, उनके चुनावों की भी तारीखों का ऐलान यहां पर हुआ है। लेकिन देखने वाली चीज यह है अजीत कि जम्मू और कश्मीर के चुनावों को अभी टाला गया है, उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सितंबर तक आपको जो है वहां चुनाव करवाने हैं। अजीत, और देखिए बिल्कुल भैया बताना चाहूंगा, शुरू से ही लगातार आशंका जताई जाती है कि जब लोकसभा चुनाव की जो चुनाव का ऐलान होगा उसी समय कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जिसमें 4 राज्यों के विधानसभा प्रमुखता से बात की जाएगी, मसलन उड़ीसा और जो ये राज्य है इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की बात की जाती है। और आज आखिरकार जब लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई तो इसके साथ ही इस विधानसभा में जो चुनाव होने इन राज्यों में यहाँ की भी जो घोषणा है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जम्मू कश्मीर को अभी टाला गया है, देखना ये होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को आने वाले समय में चुनाव वहां पर करवाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को टाला गया, लेकिन क्योंकि सब इस समय ये कहा जा सकता है कि सबकी नजर लोकसभा चुनाव में आज टिकी हुई है, जो कि आज सबका जो इंतजार है वो खत्म हो गया और अब ये कहा जा सकता है कि देश भर में आचार संहिता लग गई है। और जैसा कि बार बार हम भी पहले से बोल रहे थे कि 6 या 7 चरणों में जो लोकसभा चुनाव होने हैं और आखिरकार आज जब लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हुई तो उसमें वो साफ तौर पर देखने को मिला कि 7 चरण में जो लोकसभा चुनाव की जो तारीखों की घोषणा हुई है जिसमें
4 जून को जो पूरे के पूरे वोटों की गिनती होगी, क्योंकि 16 जून को जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और उससे पहले ही ये जो चुनाव है ये संपन्न कराया जाएगा। 4 जून को वोटों की मतगणना की जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, एक तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना यह है कि 7 जून को जब नतीजे आते हैं जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है। वही हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, अगर जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, बात की जाए अब जो है आचार संहिता भी इसके साथ लग जाएगी, कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से हाल ही में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, केंद्र की तरफ से राज्य कर्मचारियों को जो है 4% डीए दिया गया, या फिर अभी महिला दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए 100 रुपए गैस सिलेंडर में कम किए गए। ऐसी कई सारी घोषणाएं हैं जो केंद्र और राज्य की तरफ से हुई हैं। ये जो है, क्या ये चुनाव में मुद्दे बन सकते हैं जनता के बीच जाने के लिए? प्रवीण, जैसे कि सरकार की तरफ से लोकसभा चुनाव आने से पहले ही, जैसे कि बात करें पेट्रोल पे 2 रुपए कम करने की, महिलाओं के महिला दिवस पे सिलेंडर पे 100 रुपए कम करने की, और तमाम जो 4% डीए की बढ़ोतरी को लेकर ये जनता के बीच में लोकसभा से चुनाव आने से पहले जो सरकार ने सौगात दी है, कहीं ना कहीं सरकार वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और यही मुद्दे लेकर गाजियाबाद की जो देश में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने चुनाव से पहले जो उनके पास जो जनता को जो मन लुभावने जो ऑफर देने थे वो सब दे दिए, लेकिन आज चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकार को इस आचार संहिता के लागू होने के बाद कोई भी नई योजना नहीं दे पाएंगे, लेकिन सरकार अपने पुराने मुद्दों पर जनता के बीच पे जाएगी और उन्हीं का आधार पर जो वोट मांगेगी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से सीए लागू करना हो, राम मंदिर का निर्माण होना हो, या फिर गैस सिलेंडर पे 100 रुपए कम होना हो, तमाम ऐसे मुद्दे बीजेपी ने जनता को वो खत्म कर दिए जो लगातार विपक्ष पार्टियां उन पे साधा निशाना साधती थी कि बीजेपी सत्ता में रहकर किसी तरीके से जनता के पक्ष में काम नहीं कर रही है। क्या वो बेरोजगारी हो, का महंगाई हो, सब चीज को लेकर जनता अब भी त्रस्त है। लेकिन अब 18वीं लोकसभा के चुनाव में जब जनता मतदान करने जाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर वो वोट करेगी। जी रिया। जी ठीक है प्रवीण, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, तारीखों का आज ऐलान हो चुका है, बात की जाए क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में थोड़ी ज्यादा आसानी होगी जहां डबल इंजन की सरकार है? देखिए रही, आपको बता दें कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में काफ़ी आसानी जो है पार्टी को हो सकती है वहां पर, क्योंकि वहां पर पहले ही विधानसभा में सरकार बनी हुई है और प्रदेश में जब सरकार होती है तो कई सारे जो नेता हैं वो प्रचारक का भी काम करते हैं और स्थानीय स्तर पर पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलती है। ऐसी स्थिति में जहां पर प्रदेश में भी सरकार बनी हुई है भाजपा की, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सीएम योगी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ब्रांड फेस हैं, तो वहाँ पर लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फायदा ऐसी स्थिति में पार्टियों को मिलता है। और भी कई जगह की बात करें, जैसे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और चाहे बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ इन प्रदेशों में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि पहले से ही उनके जो चुनकर गए हुए उम्मीदवार हैं वो विधानसभा में हैं और अब बारी लोकसभा चुनाव की है। तो लोकसभा चुनाव में जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। जो स्थानीय नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो पहले से चुने हुए हैं, तो वो अपने साथियों को, अपने जो लोकसभा के साथी हैं जो नॉमिनेटेड हैं, इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो एक प्रचारक का काम करेंगे और जाहिर सी बात है कि काफ़ी एक बड़ा फायदा मिलेगा जहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है। रिया जी ठीक है आदित्य, आऊंगी आपके पास वापस। रुक करूंगी मथुरा से मोहम्मद फारूक का। मोहम्मद फारूक, अगर मथुरा की बात की जाए, कई घोषणाएं जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा के लिए की है और कई सारा जो है डेवलपमेंट का काम भी चल रहा है, खासकर विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो काशी हो, काफी ज्यादा जो है काम किया है, अध्यात्म से जोड़ा है, धर्म से जोड़ा है। साथ ही जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कई सारे जो है उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं। क्या लगता है 80 में से 80 जो लक्ष्य है क्या छू पाएंगे? जी रिया, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया है, अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर बनाया है, वो भी चुनावों में एक मुद्दा होगा। और दूसरी तरफ जो है
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे 100 रुपए गैस सिलेंडर में कम करने का, उससे पहले 200 रुपए कम हुए थे, 1100 रुपए का गैस सिलेंडर था। महिलाओं को ये उपलब्धि है एक सिलेंडर की, ये भी एक मुद्दा चुनाव में होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, फिर से भाजपा सरकार, तो ये बड़ा असर। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो मामला जो चल रहा है, शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्म स्थान वाला जो विवाद है, वो भी एक मुद्दा होगा, क्योंकि जिस तरीके से काशी में भी विकास कार्य हुए हैं, उसी तरीके से मथुरा में भी विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर कार्यालय है जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद में बना हुआ है, और तमाम तरीके की परियोजनाएं जो है मथुरा में चल रही हैं। गोवर्धन में, बरसाना में, गोकुल, नंदगांव, ये सारी जो है ये भी एक बड़े मुद्दे चुनाव में होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सब मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, और कहीं न कहीं जनता के बीच में ये बात वो पहुंचाने का अपना काम करेंगे। लेकिन उसमें वो कितना कामयाब होते हैं ये अब 4 जून को ही रिजल्ट बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सीएम योगी द्वारा यहाँ पर लगातार मथुरा आते रहना, खुद यहाँ की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, वो उनको तीसरी बार उनको यहाँ से फिर टिकट दिया गया है। जो पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई थी उसमें ही उनका नाम आ गया था, और उनको हेमा मालिनी को यहाँ से तीसरी बार पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उनके द्वारा भी यहाँ पर गोकुल के पास एक रावल गांव है जहाँ रावल मंदिर है बहुत बड़ा, उस गांव को हेमा मालिनी द्वारा गोद लिया गया है। तो ये सारे मुद्दे जो है जरूर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और सरकार जो है उत्तर प्रदेश की भुनाने का काम करेगी, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह वाला मामला भी ये देशव्यापी मामला है। जी रिया जी, ठीक है मोहम्मद फारूक, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि मुद्दे कई हैं, देखना यह है कि जनता आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करती है। अजीत, मैं आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार प्रवीण का रुख कर लेते हैं। प्रवीण गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जिस तरह से मुद्दों की बात हम कर रहे थे कि आखिर कौन सा मुद्दा किस पर भारी रहेगा, लेकिन साथ ही अगर बात की जाए मुद्दे बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी पे 370 भी है, राम मंदिर भी है, सीए भी है, और जिस तरह से हमने देखा था 2014 में भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर गई थी, 19 में भी, लेकिन अब की बार 24 की बात की जाए तो ये मुद्दे तो है ही, लेकिन साथ में हिंदुत्व का मुद्दा जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से हमेशा एक कोर वोटर्स हिंदुत्व रहे हैं। साथ ही जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि 2047 तक भारत को जो है एक तरह से टॉप 3 इकोनॉमी में रखा जाएगा, एक तरह से डेवलप्ड जो है वो करा जाएगा। क्या ये मुद्दा मतलब एक तरह से डेवलपमेंट का मुद्दा, और साथ ही जो बाकी अन्य मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी, कितना लाभ? जी रिया, जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संकल्प पत्र में कहा था कि भारत विकसित जो संकल्प है वो 2047 तक का वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं के लक्ष्य को लेते हुए प्रधानमंत्री की देश में अपने ये परियोजना चला रहे हैं, लोगों के हित में काम कर रहे हैं। आपने देखा जैसा उन्होंने अपना 2019 के जो अपना गारंटी दिया था कि मोदी की गारंटी, उस तरीके से वो काम भी करते दिखाई दे रहे हैं। मोदी की गारंटी में उन्होंने कई करोड़ लोगों को आवास भी दिया है, सीए की बात की थी उसको भी लागू कर दिया है, और अन्य ऐसे मुद्दे थे जो विपक्ष लगातार उठा रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों को खत्म करते हुए कहीं ना कहीं देश के जो विपक्ष थे उनको चुप कर दिया। लेकिन नए मुद्दों को लेकर अभी जो देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प पत्र में कहा है 2047 तक भारत वहां दिखाई देगा जहां तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देश में विश्व में बहुत विश्व परचम हमारा देश में लहराएगा। जी रिया, ठीक है प्रवीण, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ शोएब रिजवी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। शोएब, अगर बात की जाए जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, इसी के साथ प्रचार प्रसार भी है वो तेज हो जाएगा, ऐसे में अगर प्रयागराज की बात करी जाए किस तरह से तैयारियां? देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ 2 लोकसभा की सीटें हैं। एक इलाहाबाद संसदीय सीट है जहाँ पे वर्तमान में रीता बहुगुणा जोशी जो भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुई थी वो सांसद है। उसके अलावा ऐतिहासिक सीट है फूलपुर की, जहाँ कभी जवाहरलाल नेहरू जैसे
बड़े नेता इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इस बार केसरी देवी पटेल वो जीती थी भारतीय जनता पार्टी से, यानी दोनों सीटें पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन इस बार कुछ समीकरण चेंज हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद दोनों सीटें अलग अलग खाते में गई। जहां फूलपुर से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, हालांकि उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया। वहीं अगर इलाहाबाद संसदीय सीट पर करे तो उस पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक की जो लिस्ट जारी की है उसमें इन दोनों सीटों पर जो अपने नाम है वो ऐलान नहीं किए। इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों सांसदों के टिकट या तो काट दिए जाएंगे या अभी इस पर मंथन चल रहा है। इस तरह की कवायद चर्चा में है। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो अभी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। लेकिन आज जबकि आचार संहिता लागू हो चुकी है, अब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। लेकिन जहां तक आचार संहिता लगने के बाद के हालात की बात करें तो प्रशासनिक अमला एक्टिव हो चुका है। तमाम जो होर्डिंग और पोस्टर राजनीतिक दलों के लगाए गए हैं उनको निकालना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अब आचार संहिता नियमों के हिसाब से जो भी खर्च होंगे वो उस पार्टी में जोड़े जाएंगे। ऐसे में इस तरह की तमाम होर्डिंग और जो पोस्टर जो राजनीतिक दलों ने लगाए हैं उनको निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। और अब से जो आचार संहिता के नियम है उसका कड़ाई से पालन शुरू करा दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रयागराज भी इस महापर्व के लिए तैयार है। लोकसभा का जो महापर्व 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा 19 अप्रैल से जिसकी शुरुआत होगी, उसके लिए प्रयागराज भी तैयार है। और रही बात राजनीतिक दलों की, तो अब राजनीतिक दलों की जो तैयारियां उसमें जरूर तेजी आएगी और प्रत्याशी के नाम आने के बाद वो और जोर पकड़ेगा। जी ठीक है शोएब, बने रहिएगा, आपके पास वापस आऊंगी। रुक करेंगे अजीत का जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अजीत, अगर बात की जाए 2014 लोकसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह से तैयारी करी थी वो हम सभी ने देखा। अगर बात की जाए 2024 की, आपको क्या अंतर नजर आ रहा है बीजेपी की उस वक्त की तैयारियों में और अब की तैयारियों में, साथ ही कांग्रेस की उस वक्त की तैयारियों में और अब की तैयारियों में? साथ ही अजीत, एक और सवाल, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता को साधने में कितने सफल साबित होंगे? अजीत देखिए, बिल्कुल यह बताना चाहूंगा, चाहे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या न्याय यात्रा की बात करें, हालांकि इसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये तो अब 4 जून को मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन अगर हम चुनावों की बात करें तो जहां 2019 में एनडीए वर्सेस यूपीए की जो बीच की जो लड़ाई थी वो देखने को मिली थी, वो इस बार जो यूपीए जो है वो बदलकर इंडिया गठबंधन हो गया है। हालांकि गठबंधन में जो पार्टी है कुछ जो पुराने हैं वही है और जिसमें कुछ एक आध पार्टियों का फेरबदल जरूर हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो जहां 2019 में यूपीए गठबंधन एनडीए के मुकाबले चुनावी मैदान में था, वो अब नाम बदलकर इंडिया गठबंधन हो गया। जिसमें और सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो राजधानी दिल्ली की, जहां दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भाजपा ये तीनों मुख्य प्रतिद्वंदी होकर के चुनावी मैदान में थे, तो वहीं अगर इस बार की मैं बात करूं तो इस बार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ 4 और 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो 2019 और 24 की अगर हम बात करें तो काफी अंतर जरूर देखने को मिलेगा। 24 में जिस तरीके से 3 और 4 की सीट शेयरिंग जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में हुई है वो देखना होगा कि किस तरीके से चुनावी समीकरण को बदलने में कारगर साबित होता है। और वहीं अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा जो अगर इस बार की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार है जो 2019 से सांसद रहे हैं, जो कि मनोज तिवारी। इसके अलावा 6 की 6 जो सीट है वो सारे के सारे जो चेहरे वो बदल दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा चुनावी समीकरण जो है वो बदलने का काम कर सकता है। देखना ये होगा कि इस बार और पिछली बार के मुकाबले कितना जो है चुनावी समीकरण बदल पाएगा। हालांकि अब ये सारे के सारे जो दामोदार है वो देशवासियों पर, वोटर्स पर और मतदाता पर जो है वो आ चुका है। ठीक है अजीत, आऊंगी आपके पास वापस, बने रहिएगा। रुक करेंगे आदित्य का जो न्यूज रूम से बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से बात की जाए, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे में आदित्य क्या लगता है अब की बार ये जो चुनाव हो रहे हैं 2024 के, एक तरह से रिकॉर्ड भी इसके साथ बन जाएगा क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव यहां पर होगा। और ऐसे में आदित्य, देखने वाली चीज यह भी होगी कि जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ते हैं या फिर विकास के नाम पर, काम के नाम पर वोट पड़ते हैं। आदित्य
देख रही आपको बता दें कि जहां तक पीएम की बात करें तो पीएम ने पहले ही ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी तीसरे कार्यकाल में बहुत कुछ काम करना बाकी है। यानी कि कह सकते हैं कि पीएम मोदी जो है काफ़ी आशंका जता रहे हैं कि अभी तीसरा कार्यकाल उनका जो है फिक्स है। देखा जा सकता है कि 2014 की बात करें तो उस समय लोग कह रहे थे, विपक्ष कह रहे थे कि मोदी लहर है, 2019 में भी दूसरा कार्यकाल चला, अब 2024 का इंतजार सभी को रहेगा। हालांकि पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष हमारा वो मुद्दा विहीन है। और जहां तक बात करें तो इंडिया गठबंधन में कई जगह पर जो है यूनिटी देखने को वो नहीं मिल पा रही है। जैसे झारखंड में बात करें तो वहां पर आरजेडी हो गई, जेएमएम हो गई, कांग्रेस हो गई, सभी पार्टियों में जो है कुछ खटर फटर चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में विपक्ष कैसे मजबूती के साथ एनडीए के सामने खड़ा रहता है, क्योंकि एनडीए काफी इसमें जो है गर्व से कह रही है कि इस बार हमें उम्मीद है कि 400 पार का ये जो नारा है, ये आंकड़ा बताया जा रहा है, ये लगातार प्रसारित किया जा रहा है कि इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार लाएगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये रहेगी कि 2024 में विपक्ष आखिरकार कहां तक तैयार है, क्योंकि विपक्ष की तैयारी जो है साफ तरीके से दिख नहीं रही है, तस्वीरें कुछ कुछ धुंधली है। वहीं एनडीए की बात करें तो तमाम प्रदेशों में जो है अपने प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और कुछ प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जो मैक्सिमम देखा जाए तो वो काम हो चुका है। और अब चुनाव प्रचार जो उनका चल रहा था, तमाम जनसभाएं देखा जाए कि पीएम मोदी की जनसभा हो या फिर तमाम बड़े नेताओं की जनसभा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें या साउथ की बात करें, तो हर जगह जनसभा हो रही है, जन संबोधन हो रहा है और सौगात बांटने का काम भी किया जा रहा है। 2024 की बात करें तो तैयारियों के लिए अभी देखा जाए पेट्रोल डीजल के दाम भी देख सकते हैं, गैस के दाम भी देख सकते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ सरकार कटौती कर रही है और लुभा रही है कि 2024 के लिए सब तैयार हो रहे हैं। हालांकि अब आगे का रास्ता अभी फिलहाल थोड़ा कठिन होगा, अभी चुनाव प्रचार सब बंद होगा। हालांकि किसके लिए कौन प्रचार करता है, कहां से कौन कौन जो है एम्बेसडर होंगे, तो 2024 का ये जो चुनाव है 7 चरणों का, ये काफी देखने में दिलचस्प रहेगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 400 पार का जो आंकड़ा है वो जीत फतह हासिल करेंगे 400 से ज्यादा सीटों पर। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ऐसा कुछ कह नहीं पा रही है, उनके पास कुछ ऐसा आंकड़ा नहीं कि हम इतनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे या फिर हमारा ये आंकड़ा है जहां पर हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है काफी कॉन्फिडेंटली कह रही है कि 370 पार का आंकड़ा हमारा है और 400 सीटें एनडीए लेकर आएंगी। तो ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं जो है कुछ तैयारियों में कमी देखने को मिलती है। हालांकि अभी 2024 में जो मतदान होगा तो मतदान के बाद ये सारी तस्वीरें, जो धुंधली तस्वीर है, वो क्लियर होके आएगी, क्योंकि मतदान के पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कुछ चमत्कारी रूप से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं, कई जगह ऐसी है, कई सीटें ऐसी है जहां विपक्ष की काफी मजबूत पकड़ है, तो चमत्कारी रूप से हो सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को जो है एक उछाल मिल जाए। लेकिन जहां तक अधिकतर बात करें तो वहां पर एनडीए का काफी मजबूती के साथ, काफी कॉन्फिडेंस के साथ सभी प्रत्याशी जो हैं वो तैयार हैं और कहीं ना कहीं पीएम के चेहरे को लेकर भी सभी प्रत्याशी चल रहे हैं। और साथ ही पीएम ने यह भी कहा है कि हम इस बार अपने प्रत्याशियों के ट्रैक पर जो है हम वोट मांग रहे हैं और जो भी वोट है उनके किए गए कामों पर जो है हम वोट मांग रहे हैं 24 के लिए। जो भी काम जो है पिछले चुनाव में जो प्रत्याशी जीते थे, जो लोकसभा सांसद थे, उनका काम कैसा था, उन्होंने कैसा काम किया, जनता के बीच क्या रहा, तो उस ट्रैक रिकॉर्ड पर हम वोट मांगेंगे। जहां तक पीएम की बात है तो पीएम, मैंने पहले भी कहा कि पीएम ने कहा है कि अभी तीसरे कार्यकाल में बहुत कुछ करना बाकी है और 2047 तक जो है ये अमृत भारत और विकसित भारत, ये मोदी की गारंटी। मैं आपको बता दूं कि पीएम ने कहा था कि जहां सबकी गारंटी खत्म हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो जनता के बीच ये एक खास संदेश देता है कि पीएम जो है अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं कि जहां सभी की गारंटी खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि देखिए, पीएम ने वादा तो किया है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा किया जाएगा, लेकिन अगर पीएम तीसरा कार्यकाल करते हैं पीएम के तौर पर तो 2047 में क्या कुछ जो है वो उनके कई सारे कार्य हैं, कई सारे लिस्ट है, जो चुनावी घोषणा है। तो धीरे धीरे, और जहां तक बात करें बीजेपी की तो कई सारी ऐसे मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, सीएए का मुद्दा था, कई सारे मुद्दों पर काम किया गया और उन पर भी वोट मांगे जा रहे हैं। तो अब 2047 में क्या पीएम
अभी जो कह रहे हैं तो उनका कार्यकाल चलता है, 2024 में वापस से एनडीए की सरकार की वापसी होती है और अमृत भारत और विकसित भारत का जो संकल्प है, मोदी की गारंटी है, ये कहां तक पूरी होगी। तो ये अभी 2024 के एक बार रिजल्ट हमारे सामने आ जाए, उसके बाद ये सारी तस्वीरें, धुंधली तस्वीरें साफ हो जाएगी कि आखिरकार कहां तक उनकी बातों में कितनी सत्यता है, वो हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल आदित्य, कई सारी ऐसी सीटें हैं जिनमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, कई सारी ऐसी है जिनमें ऐलान का इंतजार है। वहीं फिलहाल के लिए बता दें कि जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लग गई है। तमाम राजनीतिक दल जो है तैयारियों पे जुटे हुए, जोर शोर से तैयारियां चल रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।